Dear kids, welcome to your English class. I'm your English tutor, right? And today we are starting with a new unit, that is your second unit of the book Marigold. We have completed our first unit and now we are here with the second unit. And here is a poem for you that says noses. Noses? What the name says? Noses. Noses means nose, right? So this poem is about noses. Isn't it strange? Now, when we talk about our noses, have you looked at your nose in the mirror? It is like long, round, chapta. Which kind of nose you have? सी सपोज हम 2 या 3 बच्चों को खड़ा कर दें, राइट? या हम अपने घर में देखें तो वी हैव सो मेनी पीपल लाइक मम्मा पापा अंकल आंटी, राइट, दादू दादी, एंड हम उनको सामने सबको खड़ा करें और उनके नोजेस को कंपेयर करें, ठीक है? तो हम क्या देखेंगे कि सबके नोजेस में कोई ना कोई डिफरेंस तो जरूर होगा, राइट? किसी की नाक लंबी होती है, किसी की मोटी, किसी की चौड़ी, किसी की छोटी, राइट? तो और यूजुअली लोगों को अपनी नाक पसंद भी नहीं आती। लोग क्या बोलते रहते हैं कि यार मेरी नाक थोड़ी सी ऐसी होनी चाहिए थी, थोड़ी सी पतली, थोड़ी सी लंबी, थोड़ी सी छोटी, राइट? तो हमेशा लोगों को अपने नोजेस से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो लगा ही रहता है, ठीक है? अब हम देखते हैं कि जो हमारे राइटर हैं, जो हमारे पोइट हैं, क्या उनको ये जो नोज है अपनी पसंद है या नहीं? एलन फिशर, ये हमारे राइटर हैं, राइट? हमारे पोइट हैं इस पोइम के। और देखिए, आइए देखते हैं वो नोजेस के बारे में क्या कहते हैं। आई लुक्ड इन द मिरर and looked at my nose. It's the funniest thing, the way it grows. अब वो क्या बोल रहे हैं इस पोइम में? वो हमें बता रहे हैं कि I looked in the mirror, राइट? वो कहते हैं कि I looked in the mirror. अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक मिरर है। जब हम मिरर में अपना चेहरा देखते हैं तो हम अपने आप को देख सकते हैं ना, राइट? तो जब हम अपने आप को देख सकते हैं तो उन्होंने भी, एलन फिशर ने मिरर के आगे खड़े होकर अपना नोज देखा। I looked in the mirror and looked at my nose. It's the funniest thing, the way it grows, stuck right out where all of it shows, with 2 little holes where the breathing goes. Right? It looked in the mirror. I looked in the mirror and saw in there the end of my chin and the start of my hair, and between there isn't much space to spare with my nose, like a handle sticking there. तो आप देख सकते हैं कि राइटर ने कितना फनी डिस्क्रिप्शन दिया है नोज का चेहरे पे। If ever you want to giggle and shout and can't think of what to do it about, just like in the mirror, and then no doubt you will see how funny your nose sticks out. राइट बच्चों, तो ये पोइम है जो एलन फिशर ने लिखी है और हम देख सकते हैं कि उन्होंने इस पोइम में नोज का कितना प्यारा सा, कितना फनी सा डिस्क्रिप्शन दिया है, राइट? तो हम देखते हैं, हम इसे एक बार फिर से रीड आउट करते हैं और फिर हम समझेंगे इसका लाइन टू लाइन मीनिंग। I looked in the mirror and looked at my nose. It's the funniest thing, the way it grows, stuck right out where all of it shows, with 2 little holes where the breathing goes. I looked in the mirror and saw it in there, the end of my chin, the start of my hair, and between there isn't much space to spare with my nose, like a handle sticking there. If you ever want to giggle and shout and can't think of what to do it about, just look in the mirror and then, no doubt, you will see how funny your nose sticks out. So, dear kids, this is a poem by Alan Fisher. Right? Now, let's see what he says about noses. राइट? तो चलिए अब हम लाइन टू लाइन इसका डिस्क्रिप्शन कर। So, dear friends, the poet is very happy about her nose, right? As you can see, the poet looks into the mirror, the poetess, and she is very happy. वो जोर जोर से हंसने लगती है, उसे बहुत अपना nose funny लगता है. She smiles, she laughs, and she thinks, I looked in the mirror and looked at my nose. It is the funniest thing, the way it grows. अब है ना funny? अब वो कहती है कि देखिए, हमारा पूरा फेस जो है वो सपाट है, यानी कि पूरा फेस फ्लैट है, जहां से हमारे हेयर एंड स्टार्ट होते हैं और हमारी चिन एंड होती है, सारा फेस हमारा
बिल्कुल सीधा है, सपाट है, लेकिन उसमें क्या निकला हुआ है बाहर को, ऊज आउट कर रहा है, दैट इज हमारा नोज। तो वो बहुत फनी सा नहीं है, बीच में लटका हुआ, राइट। इतने बड़े हमारे फेस के स्पेस में सेंटर में एक नोज लटका हुआ है, एक नोज बाहर को पॉक कर रहा है, राइट, ऐसे बाहर को निकला हुआ है। और तो और, जैसे आपने देखा है एक डोर होता है, राइट, डोर में कैसा होता है, डोर बिल्कुल प्लेन होता है ना, और उसमें बीच में एक हैंडल लगा होता है डोर को ओपन क्लोज करने के लिए, राइट। तो वो हैंडल कैसे बाहर को निकला हुआ होता है, तो शी इज कंपेयरिंग हर फेस विद दैट काइंड ऑफ डोर। ठीक है, तो आइए हम इसे पढ़ते हैं। आई लुक्ड इन द मिरर एंड लुक्ड एट माई नोज, इट्स द फनीस्ट थिंग द वे इट ग्रोज। अब पोइटेस हंसते हुए कहती है कि मैंने मिरर में देखा, और मिरर में मैंने क्या देखा, आई लुक्ड, मैंने देखा, लुक्ड देखा किसकी तरफ, एट माई नोज, अपने नोज की तरफ देखा। इट्स द फनीस्ट थिंग, ये बहुत ही फनी थिंग थी, बहुत ही लाफिंग हंसने वाली चीज थी। द वे इट ग्रोज, जैसे कि मेरा नोज ऐसे करके बाहर निकला हुआ था, एंड स्टक right out where all of it shows with two little holes where the breathing grows। ठीक है, तो वो कहती है कि किस तरह से मेरा नोज जो है बीच में स्टक है फेस के, और उसमें क्या है, दो लिटिल लिटिल होल्स हैं। ठीक है, वेयर द ब्रीदिंग ग्रोज, जहां से हम सांस ले सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर वो क्या कह रही है कि जस मेरा नोज जो है वो कहाँ है, एकदम सेंटर ऑफ द फेस में, ठीक है, जहां पे वो दिखाई दे रहा है, और उसमें टू होल्स भी बने हुए हैं जिससे हम ब्रीथ कर सकते हैं, सांस ले सकते हैं। I looked in the mirror and saw in there the end of my chin and the start of my hair। अब वो अपने फेस को ऑब्जर्व कर रही है, अपने फेस को ध्यान से देख रही है मिरर में। वो कहती है कि जहां से मेरे हेयर स्टार्ट होते हैं, यानी कि हमारा जो फोरहेड स्टार्ट होता है ना, और चिन तक, तो वो बोलती है कि इतना बड़ा मेरा फेस है, उसमें इतना सारा स्पेस है, लेकिन इजंट मच स्पेस टू स्पेयर विद माई नोज लाइक अ हैंडल स्टिकिंग देयर। तो वहां पे बीच में एकदम सेंटर पे क्या निकला हुआ है, नोज निकला हुआ है, जो कि ऐसे लग रहा है जैसे हैंडल हो एक डोर पे। अब हम जानते ही हैं कि ऐसे डोर होता है वो कैसे सपाट होता है, राइट, जैसे कि मान लो ये डोर है, और उसमें क्या बना होता है, एक हैंडल, और ये कैसे निकला होता है, ऐसे बाहर को, जिसे हम ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं, राइट, डोर को। तो उसी तरह से हमारा नोज भी हमारे फेस पर एक हैंडल की तरह लगता है। तो ठीक है बच्चों, हमारा नोज कैसा है, बिल्कुल फेस के सेंटर में एक हैंडल की तरह ऊज आउट करता हुआ, ठीक है, बाहर निकला हुआ। तो पोइट को ये सब देख के, पोइट को बहुत हंसी आती है अपने नोज को देखकर, और वो कहती है कि उसने कितना सारा स्पेस मेरे फेस का ले लिया है। इफ एवर यू वॉन्ट टू गिगल एंड शाउट, ठीक है, अब वो कहती है कि कभी ऐसा हो, मान लो कि आपका मन कर रहा है क्या करने का, गिगल करने का। गिगल होता है ई, जैसे हम ऐसे हंसते हैं ना, उसे कहते हैं गिगल करना, राइट। तो अगर मान लो आपका मन कर रहा है गिगल करने का, और शाउट करने का, चिल्लाने का, मस्ती करने का, एंड कांट थिंक ऑफ व्हाट टू डू इट अबाउट, और आपको समझ ही नहीं आ रहा कि मैं करूं क्या, राइट। अब आपका मन क्या कर रहा है कि मैं गिगल करूं, शाउट करूं, कुछ मस्ती मजा करूं, लेकिन आपको समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तो आपको क्या करना चाहिए, जस्ट लुक इन द मिरर एंड देन नो डाउट। तो वो कहती है, हमारी जो पोइटस है वो कह रही हैं कि आप सिर्फ जाइए और मिरर के सामने खड़े हो जाइए, थोड़ी देर तक अपने नोज को ऑब्जर्व करिए, ठीक है। नो डाउट यू विल सी हाउ फनी योर नोज स्टिक्स आउट। तो वो कहती है कि नो डाउट, इसमें कोई शक ही नहीं है कि आप इतना फनी, इतना मजा फील करोगे, इतनी हंसी आपको आएगी अगर आप अपने नोज को ध्यान से देखते रहोगे, फिर उसमें देखोगे कि उसकी शेप कैसी है, वो कैसे अपने आपके मुंह पे बाहर को लटका हुआ है, लाइक अ हैंडल इन द डो। तो वो जब आप ये सब देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो आपको भी नो डाउट हंसी जरूर आएगी। तो हम बोल सकते हैं कि जो पोइटस है इसमें, एलन फिशर, वो अपनी नोज को लेकर बहुत ही फनी और फनी महसूस कर रही हैं, ठीक है, और उनका मन कैसा हो रहा है, गिगल करने को, हंसने को, जोर जोर से लाफ करने को अपने फेस को देखकर, ठीक है, अपने नोज को ऑब्जर्व करके। तो बच्चों, आप भी जाइएगा आज और मिरर के आगे खड़े होकर अपने नोज को ऑब्जर्व कीजिएगा, ठीक है, और देखिएगा कि आपको हंसी आती है या नहीं। सो कैसी लगी आपको ये पोइम, आई होप आपको मजा आया होगा। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम करेंगे अपना एक्सरसाइज पार्ट। सो बाय बाय फॉर नाउ।